Welcome everybody. This is our first video in NEET previous year questions, and in this video or in this series of video we are going to discuss previous 37 years questions with full detail explanation and with chapter wise, each chapter wise. So we will be starting with class 11th, and then when we will slowly progress towards class 12 after completing class 11. We have also made theory videos regarding this chapter, that class 11th first chapter, that unit and measurement, and you can also find those videos on our YouTube channel. Name of the channel is Point Basics, and there is a playlist named Class 11th Physics. This series will be uploaded on another playlist, that is NEET PYQs, and we will be also starting another series for JEE previous year's questions. So both will be uploaded in separate playlist. Thus, we will have three playlists for class 11: one for theory, one for NEET previous years, and second for JEE main previous years. So uh, you can watch these videos, and if you like our content, then you can like our channel, share our channel, share our videos, and subscribe to our channel also. And let me explain the coding here. My videos will be uploaded with these type of names here. NEET suggest, this is NEET suggest that this video belong to NEET series. 11 suggests for class 11, 01 suggests for chapter 01, means first chapter, and 01 further means first video. So it is first video for class 11th, first chapter, and related to NEET previous year's question. We have in our theory classes, we have just 11, 01, 01 and 02 like videos, where those are only for theory classes. So let's begin today's video. And if you like to support us, then you can scan these QR codes and you can support us financially. This help us to get more books and better computer hardware to provide you better content. So let's start today's video with question number 1. So our first question is the unit of thermal conductivity हमें बताना है, और ये 2019 का क्वेश्चन है. सो थर्मल कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग हमें एक फॉर्मूला होता है जो हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ चैप्टर मैटर में पढ़ते हैं, जहाँ पे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी डिपेंड करता है के ए डी टी बाई dx. Let me make it slightly thicker. So here this q is heat, t is time, k is thermal conductivity जो यहाँ पे पूछा गया है. So k is thermal conductivity, a is area, t is temperature, so Kelvin, and x is distance. So यहाँ से अगर हम k का फॉर्मूला निकालते हैं, k will be dq by dt into dx by d कैपिटल टी. और आपको यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग रखना है दैट स्मॉल टी इज फॉर टाइम एंड कैपिटल टी इज फॉर टेम्परेचर, एंड डिवाइड 1 बाय के ए. सो दैट्स हाउ हम इसको कर पाएंगे. नाउ जो हमारी हीट होती है, हीट की यूनिट आपके पास होती है जूल. दिस इज डिस्टेंस, सो मीटर. टाइम सेकंड, ये टेम्परेचर है, सो केल्विन. एंड के हमने यहाँ पे ये ए नहीं, के नहीं आएगा, एंड ए एरिया, सो मीटर स्क्वायर. सो हम मीटर से मीटर को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट विल बी, और हमें ये पता है जूल पर सेकंड जो हमारे पास वर्क पावर होती है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो वर्क बाय टाइम होती है, और पावर की यूनिट होती है वाट, और वर्क की यूनिट होती है जूल, और टाइम की सेकंड. सो वाट इज जूल बाय सेकंड. सो ये जो हमारी जूल सेकंड है, ये वाट में कन्वर्ट हो जाएगी. मीटर ऊपर आएगा, सो मीटर इनवर्स, एंड केल्विन इनवर्स. सो वाट मीटर केल्विन इनवर्स विल भी हमारा आंसर होगा. सो ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट आर प्रोपोर्शनल.
तो हमें जो कांस्टेंट है हमें उसकी यूनिट्स बतानी है, और डैम्पिंग फोर्स है ऑसिलेटर के केस में। तो हमें ये पता है कि जब भी हम डैम्पिंग फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करते हैं, स्प्रिंग्स टाइप फोर्स की बात करते हैं। जैसे स्प्रिंग का जब सिनेरियो होता है तो स्प्रिंग में फोर्स इज इक्वल टू के एक्स होता है। तो वहां पे जो डैम्पिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बोला गया है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मींस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो आप इसको प्रोपोर्शनलिटी हटा के के टाइम्स वी लिख सकते हो, और जो आपका कांस्टेंट है यानी कि डैम्पिंग कांस्टेंट के, इट विल बी फोर्स बाय वेलोसिटी। फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो आप जब इनको मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो -2 + 1, तो आंसर विल बी किलोग्राम सेकंड -1। सो इट विल बी आवर ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फ्री स्पेस में परमिटिविटी एप्सिलॉन नोड की वैल्यू निकालनी है। ये एप्सिलॉन नोड की हमें यूनिट निकालनी है। यहाँ पे यूनिट भी पूछा जा सकता था और आइदर डायमेंशंस भी पूछी जा सकती हैं दोनों सिनेरियोज में। तो हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन फ्री स्पेस। सो हमारे पास फ्री स्पेस में जो फॉर्मूला होता है दो चार्जेस के बीच में, दैट इज 1/एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। और जब हम यूनिट्स निकाल रहे हैं तो हम Q1 Q2 को एज ए सेपरेट वैल्यू यूज नहीं करेंगे, बिकॉज Q1 भी कूलम में होगा और Q2 भी कूलम होगा। सो ये बोथ विल बी गिविंग अस कूलम स्क्वायर। सो एंड 4 पाई इज कांस्टेंट, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो यहाँ से एप्सिलॉन नोड आएगा, इट विल बी 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एंड अब आप इसको यूज कर सकते हो दैट Q1 Q2 बोथ कूलम में होंगे, सो इट विल बी कूलम स्क्वायर बाय 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी, फोर्स इज न्यूटन एंड डिस्टेंस इज इन मीटर स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर। सो जो हमारा आंसर होगा कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन एंड ओनली मीटर स्क्वायर। सो कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, नॉट न्यूटन मीटर होल स्क्वायर नहीं लेना, ओनली न्यूटन एंड मीटर का स्क्वायर लेना है। सो आंसर विल बी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ the errors in the measurement which arise due to unpredictable fluctuation in temperature and voltage supply। सो इस टाइप के एरर्स को क्या बोला जाता है, तो दीज टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स वो एरर्स होते हैं whose source are not known, जिनके सोर्स का हमें पता नहीं है और जिनको मिनिमाइज करना भी क्वाइट डिफिकल्ट होता है। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी थ्योरी की क्लासेस हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसमें अराउंड 4 वीडियोस जो आपको जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं और आपको क्वाइट डिटेल में आप एरर्स को समझ पाएंगे, और टाइप ऑफ एरर्स को भी हमने कवर किया है। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन है, मास गिवन है वायर का इन ग्राम्स, रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है, तो परसेंटेज ऑफ एरर बताना है डेंसिटी में। सो मास इज गिवन एज 0.4 ± 0.02 ग्राम्स। सो ये मास गिवन है विद एरर, ये मास की मीन वैल्यू है, ये एरर वैल्यू है, पॉसिबल एरर। उसके बाद जो रेडियस है, रेडियस इज 0.3 ± 0.001 centimeter, and after that length is provided as 5 ± 0.02 centimeter। तो हमें डेंसिटी के लिए परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। सो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा, इट इज मास बाय
वॉल्यूम, और ये क्या है, मेटल वायर है। मेटल वायर की शेप आपके पास ऐसी होती है, जो मेटल वायर होती है उसकी शेप ऐसे होती है, तो एक सिलेंड्रिकल शेप में है। तो सिलेंड्रिकल अगर शेप है तो उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल। सो मास पाई आर स्क्वायर एल विल बी द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, मास बाय पाई आर स्क्वायर। तो अब अगर आप डेंसिटी में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस, अब हम आर में एरर करेंगे, और ये पॉजिटिव क्यों हो जाता है, बिकॉज हमें ऑलवेज मैक्सिमम एरर निकालना होता है, मिनिमम एरर हम कैलकुलेट कभी नहीं करते। सो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। और इनके रिगार्डिंग हमारी थ्योरी क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अगर आपको कोई डाउट आता है वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो और अगर आपके पास ये यूनिट्स अलग अलग सिस्टम में है, जैसे अगर सपोज कीजिए ये आर मीटर में होता और उसमें ये एरर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, बिकॉज आप आर को आर से ही डिवाइड करते हो तो यूनिट्स कैंसल आउट हो जाती हैं। सो यूनिट, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की आपको कोई नीड नेसेसिटी नहीं होती। सो डेल्टा एम इज 2 into 10 raised power minus 3, it is 2 into 10 raised power minus 3 divide 0.4, which is 4 into 10 raised power minus 1 into 100 plus twice of delta r is 1 into 10 raised power minus 3 divide 3 into 10 raised power minus 1 into 100 plus delta L, it is 2 into 10 raised power minus 2 divide 5 into 100। so जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे 10⁻⁻1 को, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा और ये गिरेगा 10⁻⁻2, और ये 10⁻+2 है, तो ये पावर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। सो इट, ये आप यहाँ से आपके पास आएगा 2/4 विच इज 0.5 प्लस ट्वाइस ऑफ 1/3 प्लस 2/5 विच इज 0.4। सो जब आप इनको फर्दर ऐड करोगे, ये आपको देगा 0.5, 1/3 होता है 0.33, तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.67 आपके पास आ जाएगा प्लस 0.4, और जब आप सभी को ऐड करोगे तो इट विल गिव यू 0.90 प्लस 0.67, इट इज विल बी 1.57% एंड अप्रोक्सीमेटली 1.6, जो आपका ऑप्शन ए है। दैट्स हाउ ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमें एक एक्सपेरिमेंट में गिवन है, और एक्सपेरिमेंट में ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a स्क्वेयर b पावर हाफ c1/3 dq, ये फॉर्मूला गिवन है, और हमें परसेंटेज एरर निकालना है इन x। सो अगर आप परसेंटेज एरर इन x कैलकुलेट करते हो, सो इट विल बी डेल्टा x बाय x इंटू 100 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा b बाय b इंटू 100। और ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये हम डिटेल कर, हमारी थ्योरी की क्लास में अवेलेबल है कि हम इनको इस वे में क्यों राइट डाउन कर रहे हैं, बिकॉज ये हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं हमेशा। तो जब हम c की बारी आएगी तो उसकी पावर 1/3 है, तो पावर आगे आ जाएगी एज यूजल, डेल्टा c बाय c इंटू 100 एंड प्लस जो d की पावर है दैट इज 3, सो 3 डेल्टा d बाय d इंटू 100। सो राइटिंग डाउन, ये है a के अंदर परसेंटेज एरर, this is percentage error in b, and this is percentage error in c with this is percentage error in d। तो a के अंदर परसेंटेज एरर हमें गिवन है 1, b के अंदर 2, c के अंदर 3, d के अंदर 4। सो 2 into 1 प्लस हाफ इंटू 2 प्लस 1/3 into 3 प्लस 3 into 4।
सो आप मिलता है 2 + 1 + 1 + 12, और जब आप ऐड करोगे 14 + 2 16% विल बी आवर आंसर। सो ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन हमारे पास उसी टाइप का क्वेश्चन है, जहां पे हमारे पास एक ये 2013 का क्वेश्चन है। सो P = a³ b² c/d, और हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है इन P के अंदर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। सो परसेंटेज एरर विल बी इन P, डेल्टा P/P × 100 = 3 डेल्टा A/A × 100 प्लस ट्वाइस डेल्टा B/B × 100 प्लस C की पावर 1 ही है, सो डेल्टा C/C × 100 प्लस डेल्टा D/D × 100। जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करते हो, ये परसेंटेज एरर इन A, ये परसेंटेज इन B, ये C का परसेंटेज एरर और ये D का परसेंटेज एरर। सो A का परसेंटेज हमारे पास 1 है, सो 3 × 1, जो B है उसका हमारे पास 2 है, सो 2 × 2। C के लिए 3 है, सो दैट इज 3, एंड D के लिए हमारे पास 4 है। तो सबको हम ऐड करते हैं, 3 + 4 + 3 + 4, सो 7 + 7 इट विल बी 14%, जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टेटमेंट इज a student measures the distance traversed in free fall of a body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate the value of g. तो g की वैल्यू का एस्टिमेट करने के लिए यूज किया गया है, और हमारी थोड़ी क्वेश्चन क्वालिटी अच्छी नहीं है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें और बेटर क्वालिटी पे क्वेश्चन लेके आएंगे। और ये भी कुछ ही क्वेश्चन तक है, उसके बाद ये इंप्रूव हो जाएगी। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वैल्यू जी के लिए, if the maximum percentage error in the measurement of distance and time are C1, E1 and E2 respectively, the percentage error in estimation of G. So here it is mentioned that जो distance है उसके अंदर error E1 है, percentage error, so delta D/D into 100 is equal to E1, and time में E2 है, so delta T/T into 100 is equal to E2. So this is the error. हमें G की वैल्यू का मेजरमेंट के लिए एरर निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ऑलरेडी, और जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तब भी आप ये फॉर्मूला देख पाएंगे अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, दैट टाइम पीरियड फॉर एनी ओसिलेटिंग पेंडुलम के लिए फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज 2πL/G। ओके, और अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक सेपरेट फॉर्मूला भी है जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज S = UT प्लस हाफ GT²। अब ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली रेस्ट पे है, तो U इज 0, सो S = हाफ GT²। और अगर आप यहाँ से टाइम की G के लिए वैल्यू निकालते हो, तो G के लिए आपके पास फॉर्मूला आएगा, G विल बी 2S/T²। तो अब हम G की मेजरमेंट करनी है, हमें G का एरर निकालना है, और जो यहाँ पे D है वो S को ही रिप्रेजेंट करता है, मीन्स डिस्टेंस। सो अगर हम यहाँ पे अब G में एरर निकालें, सो इट विल बी डेल्टा G/G, और परसेंटेज एरर की बात हुई तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल बी, जो 2 है वो कांस्टेंट है तो आप उसको यूज नहीं करेंगे, इट विल बी डेल्टा S/S × 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा T/T × 100। और डिस्टेंस में जो एरर था उसको E1 बोला गया है, सो इट इज E1 प्लस ट्वाइस ऑफ, और जो टाइम का एरर है उसको E2 बोला गया है, सो ट्वाइस ऑफ E2। दैट्स हाउ जो आपका आंसर है, आंसर विल बी पार्ट बी E1 + 2E2। आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन है, इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%,
और परसेंटेज में है, सो मीन्स डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इज 2%. ओके, और 2, नॉट 2%. अगर आपको परसेंट में लिखना है तो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू 2%. सो हमें वॉल्यूम के अंदर एरर बताना है. तो जो स्फेयर होता है, स्फेयर की वॉल्यूम गिवन दी जाती है, का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब. और नाउ अगर आप वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करोगे डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, तो 4/3 पाई ये कांस्टेंट है, तो इनमें कोई एरर नहीं हो सकता, ओनली आर क्यूब में एरर होगा. दैट विल बी 3 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100. सो डेल्टा आर बाय आर 100 वैल्यू है, दैट इज 2. सो 3 इंटू 2 इट इक्वल टू 6%. आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. So next question, the density of a cube is measured by measuring its mass and length of its sides. So cube की density measure की गई है using mass and length. The maximum error in measurement of mass is 3% and length में 2%. So delta m by m into 100 is equal to 3 and delta l by l into 100 is equal to 2. ओके, तो हमें डेंसिटी का एरर बताना है मैक्सिमम पॉसिबल. सो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, और क्यूब के लिए वॉल्यूम होती है एल क्यूब. सो डेल्टा रो बाय रो इज इनटू 100, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस एल की पावर 3 है, सो 3 डेल्टा एल बाय एल इंटू 100. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. और यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज m का परसेंटेज एरर 3 इंटू एल का परसेंटेज इज 2. सो 3 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9%. सो ऑप्शन डी हमारा इसके लिए आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड. सो मास का परसेंटेज एरर इज 2% एंड स्पीड यानी वेलोसिटी का आप बोल सकते हो इज 3%. तो हमें ये बताना है काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा. सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, ये होगा परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी. हाफ कांस्टेंट है तो इसमें कोई एरर नहीं हो सकता. सो डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस ट्वाइस डेल्टा वी बाय वी इंटू 100. सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाओगे. m का एरर है 2 प्लस ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी इज 3, so it will be 6 plus 2, it is equal to 8%. आगे बढ़ते हैं. A certain body weighs 22.42 gram as measured volume of 4.7 cc. The possible errors in the measurement of mass and volume are 0.1 gram, 0.01 gram and 0.1 cc. So जो मास है, मास को आप ऐसे लिख सकते हो 2242 प्लस माइनस 0.01 ग्राम, एंड वॉल्यूम को ऐसे लिखा जा सकता है 4.7 प्लस माइनस 0.1 सीसी. सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब, आप ऐसे बोल सकते हो. तो डेंसिटी में एरर बताना है अगेन. सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, एज सिंपल. और हमें ऑप्शंस परसेंटेज में गिवन है, सो परसेंटेज एरर होगा इंटू 100 प्लस डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाय वी इंटू 100. अब की बार हमें वॉल्यूम की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है. अगर ये इसकी वैल्यू हमें लेंथ की फॉर्म में गिवन होती तो हम वहाँ पे पावर के हिसाब से लेंथ में करते, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे. सो डेल्टा एम इज 1 इंटू 10⁻⁻² बाय 22.42 इंटू 100 प्लस डेल्टा वी इज इट इज 0.1 बाय 4.7, और आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो 1/47, बिकॉज
दोनों में एक पॉइंट है तो दोनों के पॉइंट एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएंगे इनटू 100। सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इट इज 1/22। सो 1/22 इज वेरी स्मॉल, वो बहुत स्मॉल होता है। बट आपके पास ये आंसर में बचता है 100/47। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा, बट अगर आप 47 को 50 अज्यूम कर लो तो 100/50 होता है 2। तो आपका आंसर क्या होगा, अराउंड 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और अगर आप ऑप्शन देखते हो तो आपके पास 2 के आसपास एक ही ऑप्शन है, दैट इज 2%। बाकी आपके पास 0.2, 0.02 एंड 22 जो कि पॉसिबल नहीं है। सो आपका आंसर हो जाएगा 2%। तो यहाँ पे आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2%। एक्चुअली 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, समथिंग 2.1%। बट आप ऑप्शन में ओनली 2 गिवन है, सो आप 2 चूज करोगे। इससे आगे बढ़ते हैं। नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेथ। सो लेंथ इज 55.3 मीटर और ब्रेथ गिवन है 25 मीटर। आफ्टर राउंडिंग ऑफ ऑल द वैल्यूज फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो देखिए आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे अप्लाई करना है। सो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ और 55.3 इंटू 25। अब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में आपको क्या करना होता है, जो आपका एरिया होता है उसमें ऑलवेज आपको मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट रखने होते हैं। जैसे यहाँ पे जो 25 है, 25 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है और 55.3 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो जो आपका आंसर होगा, आंसर के अंदर भी ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। तो अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है, दैट इज डी ऑप्शन, 1400 इंटू 10⁻², जिसके अंदर हमारे पास ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्चुअल आंसर आएगा 1382.5। ये आपका एक्चुअल आंसर होगा। बट ड्यू टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बिकॉज जो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको राउंड ऑफ करोगे। और राउंड ऑफ करना आपको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में, मीन्स आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स रहेंगे और बाकी सबको आपको राउंड ऑफ करना है। और जब आप इसको राउंड ऑफ करने लगोगे तो ये 82.5 है और ये आप इसको बिकॉज ये 2 नंबर की स्केल पे है, आप 0.5 को रिमूव कर दीजिए तो आपके पास 82 है। और अगर आप 82 को 100 की स्केल पे देखते हो तो ये 50 से ज्यादा है। मीन्स जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, सो इट विल बी 14। एंड यहाँ पे आप 2 जीरो लगा दोगे बिकॉज जीरोज सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होती। तो आपका आंसर विल बी 1400 और इसको आप 14 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। सो दिस विल बी योर आंसर। अगर आपने इसको 1400 मीटर स्क्वायर लिख दिया होता तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होते। बट अगर आप इसको 14 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर लिख रहे हो तो यहाँ पे ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जो कि हमारे आंसर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आगे बढ़ते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू। हमें सब्ट्रैक्शन करना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स का यूज करके। 9.99 माइनस 0.0099। सो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो आप देख सकते हो, हमने 2 जीरो नहीं लगानी चाहिए थी यहाँ पे। तो आफ्टर डेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन में आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट डिजिट देखे जाते हैं जो सबसे कम हो। तो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, ये 9 एंड दैट इज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो मीन्स आपका जो फाइनल आंसर है उसके अंदर उसमें भी आफ्टर डेसिमल ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने ही चाहिए। और अगर आप ऑप्शंस देखते हो तो आपके पास ओनली एक ही ऑप्शन है, दैट इज 9.98, जो कि इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। और अगर आप नॉर्मली सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो इट विल बी 1 एंड इट इज 90, इट इज 899। और आपको बिकॉज ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट रखने हैं तो आप 01 को ड्रॉप कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 9.998। सो ये हमारा 2020 का क्वेश्चन था। सो ये तो अभी रिसेंट क्वेश्चन ही है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। तो जो हमारे पास सॉलिड एंगल होते हैं, जो उनकी डायमेंशंस क्या होती है,
दैट इज, जो उनकी यूनिट होती है दैट इज रेडियन, एंड रेडियन और स्टी रेडियन होती है, और ये यूनिट लेस होते हैं। और जो हमारे पास, अब हमें ये देखना होगा कि इनमें से यूनिट लेस कौन कौन है। तो जो ऑप्शन है आपका एक्यूरेट, दैट इज स्ट्रेन एंड एंगल, बिकॉज एंगल यूनिट लेस होता है, और जो स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन इन इज डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, और आप एरर बाय वैल्यू लिख सकते हो। और बिकॉज चेंज इन लेंथ भी आप मीटर में मेजर करोगे और लेंथ भी मीटर में मेजर करोगे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, दैट्स हाउ जो आपके पास स्ट्रेन होती है वो यूनिट लेस हो जाती है। तो ऑप्शन इज, आंसर इज ए, और ये तो आपका जस्ट रिसेंट क्वेश्चन है 2024 का। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये बताना है कि ये जो डायमेंशंस हैं एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ये किससे बिलोंग करती है। तो अब आपको थोड़ा सा चीज़ों को, इस केस में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्शंस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी या इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, इनकी डायमेंशंस को आपको एज सच या तो आपको क्रैम करना पड़ेगा या फिर आपको फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन निकालनी है तो आप पहले आप मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस निकाल सकते हैं एफ आई इजिकल टू बी आई एल से, और यहाँ से फिर आप इसको एरिया से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और ये जो हमारी डायमेंशन है दीज आर फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। आपको म्यू नोड, एप्सिलॉन नोड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल, ये सभी डायमेंशंस आपको एज सच क्रैम करनी पड़ेंगी। वाई? बिकॉज, एंड वन मोर इज एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, सो दैट जब भी आपके पास इनमें से कोई आए तो आप उनको जान के, देख के पहचान सको और आंसर्स को एलिमिनेट कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स हैव, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, अब प्लेन एंगल क्या होता है जो आप डिग्री में मेजर करते हो, दैट इज थीटा, और जो सॉलिड एंगल होता है दैट है उसको आप स्टी रेडियन में मेजर करते हो। तो थीटा की आपके एंगल की आपके पास दो यूनिट्स होती हैं, एक तो डिग्री होती है और एक रेडियन होती है। सो प्लेन एंगल के पास भी यूनिट है, सॉलिड एंगल के पास भी यूनिट है, बट दोनों यूनिट लेस होते हैं। सो यूनिट है बट नो डायमेंशंस, डायमेंशंस नहीं होंगी। और डायमेंशन क्यों नहीं होंगी, आप यहां से भी आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपके पास ये कोई पार्ट है तो इस पार्ट को अगर आप डेल्टा एल बोलते हो और इसको आर बोलते हो तो ये थीटा है, तो यहाँ पे थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है डेल्टा एल बाय आर फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। और नाउ डेल्टा एल भी लेंथ में मेजर होती है, मींस मीटर में, और आर भी मीटर में मेजर होती है, तो दैट्स वाई जो यूनिट्स हैं वो कैंसल आउट हो जाती हैं और इसके पास एज सच कोई नॉर्मल यूनिट नहीं बचती। हम इसको बाद में उसको बोलते हैं जो एक टाइप से हम आर्टिफिशियल यूनिट असाइन करते हैं। सो दैट्स वाई इसके पास यूनिट तो होती है आर्टिफिशियल यूनिट्स, बट डायमेंशंस नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। वो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट्स एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हमें इन दोनों का रेशियो निकाल के उसकी डायमेंशन निकालनी है। सो जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी टी माइनस टू इंटू डिस्टेंस इज एल, सो आंसर इज एम एल स्क्र टी माइनस टू फॉर एनर्जी। अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें हम, तो फोर्स इज जी एम एम टू बाय आर स्क्वायर, सो दैट्स हाउ आप यहां से g की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट g इज f इंटू आर स्क्वायर बाय m1 m2। और अब अगर हम E बाय g करते हैं, सो वी गेट फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय फोर्स इंटू आर स्क्वायर इंटू m1 m2। सो फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। और अब हम डायमेंशन राइट करें अगर, तो डिस्टेंस की l, दोनों मास हैं तो m स्क्वायर, और अगेन जो नीचे आर स्क्वायर है सो एल स्क्वायर। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे एम स्क्वायर, ये एल ऊपर आके -1 हो जाएगा, एंड टी रेज टू पावर 0। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सो ये थोड़ा हाइड हो गया।
सो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस हमें बताना है, स्ट्रेस की डायमेंशन। तो स्ट्रेस होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसको प्रेशर भी आप बोल सकते हो। सो विद दिस जो हमारा आगे फर्दर फॉर्मूला बन जाएगा, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 एंड एरिया इज एल स्क्वायर। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी ml-1 t-2। सो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, जिनके पास सेम डायमेंशन है हमें वो बताना है। नाउ अगर हम डी ऑप्शन देखें, दैट इज यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस होता है फोर्स बाय एरिया इनटू डेल्टा एल बाय एल। सो फोर्स बाय एरिया इज काइंड ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस, और एनर्जी होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डी ऑप्शन नहीं होगा। नाउ वर्क और टॉर्क पे आए अगर, तो जो वर्क होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड टॉर्क होता है आर इंटू एफ, डिस्टेंस इंटू फोर्स। सो बोथ का दोनों का फॉर्मूला सेम है। सो अगर दोनों का फॉर्मूला सेम है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। सो दैट्स हाउ ऑप्शन सी आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको म्यू नोड एप्सिलॉन नोड पावर माइनस हाफ की डायमेंशंस बतानी है। सो अगर आपने लाइट वाला चैप्टर किया हो तो वी नो दैट म्यू नोड एप्सिलॉन नोड 1 बाय म्यू नोड एप्सिलॉन नोड क्या देता है, वेलोसिटी देता है, एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट देता है किसी मटेरियल के अंदर। अगर आपको उस मटेरियल का म्यू नोड एप्सिलॉन नोड पता है तो इस फॉर्मूला से आप उस मटेरियल के अंदर लाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे एग्जैक्टली यही पूछा गया है। आप इसको अगर ऊपर लेके आते हो तो इट विल बी माइनस हाफ इक्वल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1। सो ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमें डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नोड ई स्क्वायर बताना है, जहां पे एप्सिलॉन नोड इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप इसको एज सच कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये आपके लिए क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा। बट आप अगर जो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने पढ़ा है, ये क्लास 12th के अंदर आता है, तो वहां पे आपके पास फॉर्मूला होता है जस्ट दैट प्रेशर exerted by electromagnetic field is half epsilon naught E square। सो ये फॉर्मूला किसका है, प्रेशर का। और प्रेशर होता है अनदर फॉर्मूला प्रेशर के लिए फोर्स बाय एरिया। इसके आपको कैलकुलेट करना इजी रहेगा। सो ml2 फोर्स इज mlt-2 बाय एरिया l स्क्वायर। सो ml-1 t-2 एंड आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ये फॉर्मूला प्रेशर के लिए है, और प्रेशर के लिए आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बिकॉज आपकी डायमेंशन कभी चेंज नहीं होती अगर आप फॉर्मूला चेंज कर देते हो। फॉर्मूला आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज MALBTC। हम इसमें ABC की वैल्यूज को प्लग करेंगे और ये बताना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी। तो पहले गिवन है A की वैल्यू को हमको 1 करना है, B को 0 करना है और C को -1 करना है। सो इट विल बी m-1। और ये बोला गया क्या ये वेलोसिटी है, नहीं, वेलोसिटी होती है lt-1। सो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड पे आते हैं। अगर हम A को 1 कर देते हैं, B को 1 कर देते हैं और T को -2 कर देते हैं, C को -2 कर देते हैं, तो m1 l1 t-2, तो एक्सेलरेशन क्या होती है lt-2। तो वो भी रॉन्ग होगा। नाउ कमिंग टू फोर्स। जो फोर्स होता है, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, मीन्स वहां पे A की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और अभी आपको थर्ड ऑप्शन में m की पावर 0 दी गई है, l की -1 और t की -2। सो ये भी फोर्स नहीं होगा। सो ओनली ऑप्शन बचता है दैट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा और ये प्रेशर की डायमेंशंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। इन पांचों में से ये बताना है कि किसकी डायमेंशंस सेम होंगी। सो
नाउ अगर हम पहले वाले को देखते हैं, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। सो जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसकी डायमेंशन एग्जैक्टली प्रेशर के इक्वल होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सेकंड है वो यूनिट लेस होता है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों की डायमेंशन सेम होगी, सो डायमेंशन लेस। तो जिसके अंदर भी 2 आएगा वो तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, सो 2 ऑप्शन सी इज कैंसल आउट। नाउ थर्ड इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्थ इज यंग्स मॉडुलस। जो यंग्स मॉडुलस होता है इट इज फोर्स बाय एरिया यानी स्ट्रेस बाय डेल्टा एल बाय एल, और स्ट्रेस इज आल्सो इक्वल टू प्रेशर। सो 1 and 4 is our answer, so option A is correct. Moving to next question, dimensions of resistance in electric circuit in terms of mass, length, time and current I। तो resistance की हमें dimensions बतानी है, so using ohm law V is equal to IR होता है, तो यहाँ से resistance आ जाएगा voltage by current। now हमें अभी करंट का तो हम एज इट इज आई यूज कर सकते हैं, बिकॉज करंट एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल यूनिट है। तो हमें अभी पोटेंशियल की निकालनी पड़ेगी। पोटेंशियल के लिए आप कैसे निकाल सकते हो, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, सो एफ इंटू डी, एंड चार्ज इज अगेन चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, सो ए इंटू टी, और यहाँ पे हम ए की जगह पे आई यूज कर रहे हैं, so I into t, so force is ml t minus 2, distance is again l and it is I into t, so हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है ml स्क्वायर t, ये ऊपर जाके नेगेटिव होगा, सो -3 इंटू आई पावर -1, यहाँ पे पुट करेंगे ml स्क्वायर t minus 3 I -1 बाय I, और जब ये I ऊपर जाएगा तो हमारे पास I -2 हो जाएगा, सो ml स्क्वायर t -3 I -2, और जो कि ऑप्शन सी होगा आपके लिए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशंस ऑफ। सो जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की आप डायमेंशन या तो E इक्वल टू एच न्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, या एक और अदर फॉर्मूला होता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, या आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आपके लिए जो भी प्रेफरेबल हो। एंड नाउ कमिंग टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आई बोला जाता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। सो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, और हम इसका यूज करते हैं दैट बिकॉज यहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 2 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, एन एक नंबर होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, सो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन होती है एल के इक्वल, और एल इज एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम होता है मास वेलोसिटी इनटू रेडियस। सो हमें रेशियो निकालना है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आएगी एम वी आर से, और डिवाइड करना है उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, यानी कि एम आर स्क्वायर से। सो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सो velocity into r की पावर -1, velocity is lt -1, और r is distance, और distance is l -1, so l से l कैंसिल हो जाएगा, so it is t -1, और t माइनस होती है फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम, सो आंसर इज फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 2004 एंड 1992। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ से जी वैल्यू आ जाएगी एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। सो नाउ पुटिंग डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स इज mlt -2, डिस्टेंस स्क्वायर एल स्क्वायर, एंड ये दो मासेस हैं, सो
एम स्क्वेयर। सो ये एम से कैंसिल हो जाएगा, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे एम पावर -1 ये ऊपर आएगा, L3t-2, सो M1L3t-2 ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर इक्वल टू, तो हमने जस्ट अभी सोल्व किया था, ये एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है, और जो फॉर्मूला होता है दैट L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई और 4 पाई। ये आप ये फॉर्मूला आप केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, और कहाँ पे, बोहर्स मॉडल में, जहां पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज रहता है ऑर्बिट्स का। आप बोहर मॉडल में भी स्टडी करोगे इसको, और जब आप SPDF ऑर्बिट्स पढ़ोगे, क्वांटम स्ट्रक्चर पढ़ोगे, वहां पे भी आप ये फॉर्मूला स्टडी करोगे दैट L इज इक्वल टू NH/2 पाई। सो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। और आज का हम नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन करते हैं। सो इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी पेयर्स का इक्वल डायमेंशंस डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन नहीं है। सो कमिंग टू ऑप्शन ए, एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि वर्क के इक्वल है, और टॉर्क भी फोर्स इनटू आर इनटू एफ होता है, तो फर्स्ट आर इक्वल, पहले वाले दोनों इक्वल है। नाउ कमिंग टू सेकंड, फोर्स एंड इम्पल्स। सो जो फोर्स होता है एंड जो अगर हम इम्पल्स देखें तो इम्पल्स होता है डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, एंड फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। सो फोर्स में एक एडिशनल टाइम है जो कि इम्पल्स में नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि इन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट हमने जस्ट अभी पढ़ा था। इलास्टिक मॉड्यूल एंड प्रेशर भी दोनों सेम होता है, बिकॉज इलास्टिक मॉड्यूल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है और स्ट्रेस इज अगेन प्रेशर। सो विद दिस हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। हमने इसमें अराउंड 29 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है अराउंड मोर 20 to 25 क्वेश्चंस जो अभी पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और इसके साथ ही जो नीट प्रीवियस ईयर्स है आपके 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के लिए कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको अगर यूज़फुल लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगे दैट यस कि आप हमें कुछ हेल्प दे सकते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके वट एवर अमाउंट यू कैन आप हमें डोनेट कर सकते हैं। इस अमाउंट से हमें बेटर बुक्स लेने में, बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है, जिससे हम आपके सामने और बेटर क्वालिटी वीडियोस लेके आ सकते हैं। सो विद दिस हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, और वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, thanks for watching. Keep liking, sharing and subscribing.